Good morning, children. On the behalf of Oscar Public School, I welcome you all to the online classes. My name is Namisha. I am appointed to be your social science teacher. I hope you all are fit and fine at your homes. I am really so excited to meet you all on online classes. So student, due to corona pandemic, well, we are just going to learn so many new and exciting things together. I welcome you all again and let us start the today's class. So बच्चे, in our previous classes we have already read about the introduction of past. This is your history first chapter. So in the last class we have already studied about the what is history. So we have already know about the what is history. Beta, history help us to understand the change and how the society we live in come to be new. So in specifically we have just studied in this about the society, about the events, people, issues, problems of the past and our endeavor of understand them. So beta, why do we study history? हम history पढ़ते क्यों हैं? Because it is tell us about the different type of culture and civilization. It is also tell about the discoveries and invention. Due to events of history, it teach us discriminant. It is inspire of think bigger, to have the purpose, and it gives us the desire to be different. So these are the things we have to know about the history, and history tell us about these things. So now after that beta, we have just already periodization of history. हमने history को क्या किया था? Period में divided किया था. Like these are the periodization of history. First of all, history. History has a three parts: ancient history, medieval history and modern history. Have you see about the cursor? See, आपको cursor दिखाई दे रहा होगा. हिस्ट्री के थ्री पार्ट्स हैं: एशियंट हिस्ट्री, medieval means मिड का हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री. एशियंट हिस्ट्री हैज़ also three parts: प्री हिस्ट्री, proto history and history. So prehistory also in divided into three ages: stone age, bronze age and iron age. So let us start about the history, prehistory, proto history and history. The first is prehistory. Beta, in this prehistory period, man did not lead their settled life. They are wandered from one place to अनदर प्लेस. ये हमने पिछली बार भी पढ़ा था कि इन द प्री हिस्ट्री में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं. फॉर इन दिस टाइम बेटा अर्ली ह्यूमन आर नॉट हैव द सेटल्ड लाइफ. उसकी सेटल्ड लाइफ नहीं थी. दे आर वंडरर्स, मीन्स दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. देयर इज़ नो रिकॉर्ड्स ऑफ दिस टाइम. यानी कि हमें प्री हिस्ट्री के कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिलते. जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी एविडेंस है, दे आर नॉट कम फ्रॉम द आर्कोलॉजिस्ट. आर्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं बेटा? द आर्कोलॉजिस्ट डिग अप इनटू द ग्राउंड टू फाइंड मोर अबाउट देम. यानी कि खुदाई के ज़रिए अर्थ को डिग करने के बाद, यानी कि अर्थ सरफेस को डिग करने के बाद, खोदने के बाद जो भी हमारे से चीज़ें निकलती हैं, उससे हमने पता लगाया कि प्री हिस्ट्री में लोग कैसे रहते होंगे. लाइक हमें बहुत सारे वेपन्स मिले, बोन्स मिली, टूल्स मिले, कॉइन्स मिले, ज्वेलरी मिली, सो ऑन. सो इसी प्री हिस्ट्री को हम थ्री एजेस में डिवाइड करते हैं. स्टोन एज. तो बेटा इन दिस एज ज़्यादातर स्टोन्स का यूज़ होता था. ठीक है, फॉर मेकिंग टूल्स, फॉर मेकिंग वेपन्स. इन सब चीज़ों के लिए किसका यूज़ होता था? स्टोन का. व्हेन वी हैव कम टू द ब्रॉन्ज एज, तो टूल्स और मशीनरी के लिए ब्रॉन्ज का यूज़ होना लगा. एंड देन वी हैव टू कम इन द आयरन एज. सो इन दिस आयरन एज आयरन का यूटिलाइजेशन शुरू हुआ. So this prehistory has divided into three different ages: Stone Age,
Bronze Age and Iron Age. Then after had proto-history. Beta, in this proto-history, there it started would be the some records were available in India. कुछ records, कुछ written records हमें मिले. एंड देन वी नो द पीपल स्टार्टेड cereals, यानी कि अब उन्होंने अनाज खाना, वीट, बर्ले, ये सब चीज़ें उन्होंने स्टार्ट करी. बिकॉज आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैव गिवन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस. इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ दिस पीरियड. Now we are just talking about the history. So बेटा history started after the invention of writing. history की शुरुआत कहाँ से होती है? जब writing का invention हो गया. Then after that we would have a written records for this period. हमें यहाँ पर written records भी मिले, like pillars पे लिखा हुआ, rocks पे लिखा हुआ, copper plate, clay tablet, palm leaves, etc. etc. इट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि हमें ज़्यादातर जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है वो इन्हीं सोर्सेज के थ्रू मिली है. बेटा, आई एम जस्ट टॉकिंग यू अबाउट आई एम जस्ट स्पीकिंग इन अ हिंदी एज वेल टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर very well. So beta, don't think that you are just studying in English medium, so just focus on the English word as well. If you have any issue in a particular word, you can underline the word. आपको अगर लगता है कि कोई वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा है, उस वर्ड को अंडरलाइन कीजिए. यू हैव अ डिक्शनरी, आपके पास डिक्शनरी है तो उस डिक्शनरी में से उस वर्ड को चेक कीजिए कि व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. इफ़ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड द वर्ड, और अगर आपके पास डिक्शनरी भी नहीं है, तो आफ्टर दैट यू कैन यूज़ द गूगल पे जाकर आप लिखिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ XYZ, जो भी वर्ड है. तो गूगल विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द वर्ड बेटर. गॉट इट? So we also know about the time frame of history. It is very important to understand it very well. अब आप समझेंगे इसको अच्छे से. टाइम फ्रेम ऑफ हिस्ट्री. सो बेसिकली बेटा आपने देखा होगा, इट इज़ द वी कैन यूज़ द AD एंड BC विद द ईयर, लाइक 750 AD, 520 BC. हमने देखा ही, सुना, आपने देखा भी होगा इन अ प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो, इन द हिस्ट्री ऑल्सो, कि हर एक नंबर ऑफ द ईयर के बाद एक AD या फिर BC लिखा होता है. AD स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी. AD स्टैंड्स फॉर, रिपीट आफ्टर मी, एनो डोमिनी. एंड BC स्टैंड्स फॉर बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. ठीक है, यानी कि एनो डोमिनी, AD का मतलब एनो डोमिनी और BC का मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट से जन्म के पहले की बातें. ठीक है, यानी कि BC मतलब जीसस क्राइस्ट के, ठीक है, उनसे पहले की बातें. दीज कम्स अंडर द ग्रेगोरियन कैलेंडर. ठीक है, ग्रीकोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम ये चीज़ देखते हैं, AD एंड BC. AD stands for yes, Anno Domini, and BC stands for before the birth of Christ, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ होने के पहले की बात है. Today, if someone asks you are date and you are mention the month, date and year 2019, यानी कि अभी तो क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है. तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? टुडेज, आज की डेट, मंथ अप्रैल चल रहा है, और 2021. ट्रेडिशनली इट इज़ अंडरस्टैंड एज 2, यानी कि जैसे कि 1019 ईयर्स आफ्टर जीसस क्राइस्ट बिलीव इन हैव बीन बॉर्न. यानी कि अब हम क्या बोलेंगे कि 2021. ठीक है, यानी कि 2021 ईयर्स, हम यही तो बोलेंगे. अभी क्या कर रहे हैं, 2021 चल रहा है. ध्यान से समझेंगे इसे. अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2021. तो हम इसे क्या लिखेंगे, 2021 ईयर्स आफ्टर जीसस क्राइस्ट इज बिलीव्ड टू बी बीन
बॉर्न, यानी कि जीसस क्राइस्ट के मरने के 2000 यानी उनके जन्म होने के 2021 साल बाद। वी मोर रिसेंट सिस्टम इज़ BCE। अभी हम क्या यूज़ करते हैं? BCE, विच स्टैंड्स फॉर बिफोर द कॉमन एरा। It is a BCE, which stands for before the common era, and CE is for common era. It is a newer way to express the same period but without a Christian reference। यानी कि बेटा यहाँ तो हम कह रहे थे ना कि BC मीन्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट एंड AD मीन्स एनो डोमिनी मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और बट यहाँ पर हम BCE यूज़ करते हैं। BCE मीन्स बिफोर द कॉमन एरा, यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, और CE मतलब कॉमन एरा। ठीक है, यहाँ पर हम क्रिश्चियन रेफरेंस नहीं दे रहे। नाउ जोग्राफिकल सेटलमेंट। बेटा इन दिस जोग्राफिकल सेटलमेंट civilization result as a hunter gatherer started to settle to practice agriculture। बेटा इन जोग्राफिकल सेटलमेंट में हमने देखा कि नाउ सी बेटा इन दिस मैप, this is a physical map of subcontinent। बेटा in this according to this map these are the term of civilization। यहाँ पर अब लोग रिजल्टेड हंटर एंड गैदरर्स आकर लाइफ को सेटल करने लगे। एंड नाउ दे हैव नीड ऑफ फूड एंड वाटर फॉर सर्वाइवल। हर ह्यूमन बीइंग को वाटर एंड फूड चाहिए सर्वाइव के लिए। इसी चीज़ के लिए इन्हें क्या चाहिए? फर्टाइल लैंड। फर्टाइल लैंड हमें कहाँ मिलेगी? इट्स द जोग्राफी नियर द बैंक वॉज। बैंक्स मीन्स किसी भी वाटर बॉडी का किनारा, नदी, नहर, किसी का भी किनारा हमेशा फर्टाइल होता है। फर्टाइल मीन्स फ्रूटफुल, उपजाऊ। फर्टाइल मीन्स फ्रूटफुल। सो इट हैज़ अ बोथ फर्टाइल एंड रिच फ्लोरा एंड फौना। द मोस्ट अर्ली सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर द रिवर वैली। ये मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था टेस्ट में कि ज़्यादातर सिविलाइजेशन आपको कहाँ मिलेगी? जितने भी आपकी रिवर वैली हैं, रिवर के किनारे वाले हिस्से पे आपको हमेशा कोई ना कोई सिविलाइजेशन मिलेगी। सिविलाइजेशन मतलब कोई भी लोग जो कि वहाँ पर रिवर के पास रहना पसंद करते थे। इन इंडिया पीपल लिव्ड along the bank of river Narmada for several 100,000 years। नर्मदा रिवर के पास हमेशा आपको जो है वो आपको सिविलाइजेशन मिलेगी। गॉट इट बच्चे? दीज आर द नर्मदा रिवर। सो नर्मदा रिवर जहाँ जहाँ भी फ्लो होती है वहाँ पर आपको ज़्यादातर 1000 ऑफ ईयर्स तक लोगों ने रहना पसंद किया। गॉट इट बच्चे? नाउ इन दिस जोग्राफिकल अदर सेटलमेंट्स वर लोकेटेड नियर, यानी कि अदर सेटलमेंट्स जो कि रिवर वैली के पास है। दैट इज़ सुलेमान एंड किरथार हिल्स इन नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मीन्स ये होगा नॉर्थ और वेस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट। दिस इज़ द सुलेमान एंड, ये लिख रहा है आपको जहाँ मैं ब्लैंक कर रही हूँ। This is the Suleiman and Kirthar hills in the northwest. People practice agriculture and begin to grow crops like, see beta, begins to crop like barley and wheat around the 8,000 years ago। It's really amazing। आज से 8,000 साल पहले यहाँ पर एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। They also began rearing animals like goat, sheep एंड कैटल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रेयर होना शुरू हो गई थी। गारो हिल्स एंड वेयर इट इज़ लोकेटेड, पता होना चाहिए आपको गारो हिल्स कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ आपने पढ़ा था ना, गारो, खांसी, जयंतिया, दीज आर द हिल्स। सो गारो हिल्स, आई एम जस्ट पॉइंटिंग द कर्सर हेयर। These are the Garo hills। So Garo hills were agriculture developed। यहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप्ड हो चुका था। विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया, यानी कि विंध्यास कहाँ पर है? अब देखिए सेंट्रल इंडिया में, ये रही, आई एम जस्ट कर्सिंग हियर। विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया वर
राइस वाज फर्स्ट ग्रोन, सबसे पहले राइस को यहीं पर ग्रो किया गया, ठीक है। अराउंड द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, ये आप देखेंगे गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, दिस रीजन अलॉन्ग द रिवर एंड साउथ ऑफ गंगा वॉज नॉन एज मगध। मगध के साइड में ही ये सारा मगध रीजन कहलाने लगा, ठीक है। इट रूलर सेटअप अ लार्ज किंगडम एंड वर वेरी पावरफुल, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। गंगा रिवर का जो साउथ वाला पार्ट था दैट इज़ मगध। मगध की सबसे फेमस, मगध के 2 फेमस किंग का नाम सुनाइए, बताइए मुझे। अजात शत्रु, बिंबिसारा, ठीक है। आगे चल कर आप पढ़ेंगे चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। दीज आर द थिंग्स, दीज आर द प्लेसेस मगध, जहाँ से बहुत बड़े बड़े रूलर्स ने पूरी कंट्री पर रूल किया है, ठीक है। नाउ द नेम ऑफ इंडिया, आप जिस कंट्री में रह रहे हैं, दिस कंट्री नेम्स द इंडिया। वी ऑफर रेफर टू इंडिया एज द इंडिया एंड भारत। इंडिया क्या कहते हैं? इंडिया को इंडिया और भारत कहते हैं। द वर्ड इंडिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम इंडस। बेटा देखिए, ये एक रिवर थी सिंधु, जिसको हिंदी में सिंधु बोला जाता था और इंग्लिश में इंडस। सो इसी इंडस रिवर की वजह से विच आर नोन एज सिंधु, सिंधु मीन्स इट इज़ अ संस्कृत लैंग्वेज वर्ड, ठीक है। संस्कृत में इसको सिंधु बोला जाता था और इंग्लिश में इंडस। सो इन दैट टाइम ग्रीक एंड ईरानीज, ग्रीक और ईरान से आने वाले लोग ईरानी, दे हैव कम टू इंडिया वाई नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago, donated the country and the people living beyond the Indus river as Hindus or Indos, and the land of the east of the river was called India. बेटा सी, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसे। यहाँ पर रहने वाले लोग जो ईरानी आए, क्योंकि इन्हें ठीक से बोलना नहीं आता था, इंडस आए, ये इंडस रिवर को सिंधु रिवर को ये हिंदू बोलने लगे, इंदू रिवर और इंडू और हिंदू ये रिवर बोलने लगे। इसी से इंडस पड़ा और करते करते इसी से हमारी कंट्री का नाम इंडिया पड़ा। यानी कि जो लोग इंडस रिवर के नियर बाय रहते थे उन्हें हिंदू और इंडिया बुलाया जाने लगा। इंडिया इज़ ऑल्सो नोन एज भारतवर्ष। इंडिया को क्या कहा जाता है? भारतवर्ष। आफ्टर द भारत ट्राइब मेंशन इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में भी भारत एक ट्राइब था, एक जनजाति थी। ये हमें ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद आपने 4 वेद पढ़े हैं। देयर आर बेसिकली 4 वेद। टेल मी अबाउट द वेद। फर्स्ट इज ऋग्वेद, सेकेंड इज सामवेद, थर्ड इज यजुर्वेद, फोर्थ इज अथर्ववेद। रिपीट आफ्टर मी। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। रिपीट आफ्टर मी। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। दीज आर द 4 वेदा। और सबसे बड़ा, सबसे पुराना वेद हम कहते हैं ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के अंदर हमें भारत ट्राइब के बारे में पता चलता है, इसीलिए इस कंट्री का नाम भारतवर्ष भी रखा गया, ठीक है। सो बेटा वी कैन, आई एम जस्ट रेस्टिंग द क्लास हेयर ओनली। आज आपकी क्लास को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। सो दीज आर द असेसमेंट, यानी कि ये आपका वर्क है जो आप अपनी नोटबुक में करेंगे। नोटबुक मैंने आपको बताया, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सिविक्स का काम आप एक रजिस्टर में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस यू कैन राइट विद द ब्लैक पेन, ब्लैक जेल हो चाहे ब्लू हो, नॉट इशू। एंड आंसर्स यू कैन राइट विद द ब्लू पेन। सो बेटा दीज चूज द करेक्ट आंसर्स। आपको चारों ऑप्शंस नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन लिखेंगे ब्लैक पेन से, ठीक है। ब्लैक पेन से ही ऑप्शन लिखेंगे और जो करेक्ट आंसर है उसके आगे टिक करेंगे, ठीक है। fill in the blanks you can also do in your notebook। तो आज का आपका होमवर्क है A part choose the correct answer and B part fill in the blanks। both you can do in your notebook। बेटा complete your work on time। बाद में आपको कोई वर्क नहीं दिया जाएगा। so just keep this in your mind कि आपको आपका काम आज की ही डेट में फिनिश करना है। राइट टुडेज़ डेट, आज की डेट डालेंगे
ऊपर चैप्टर का नंबर लिखेंगे, चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री, चैप्टर का नेम एंड स्टार्ट द वर्क। बिना डेट डाले कोई काम नहीं करेगा एंड जस्ट बीइंग दैट फ्लूइड यूज़ नहीं करेंगे। सुंदर राइटिंग में, अच्छी राइटिंग में नीट एंड क्लीन आप वर्क करेंगे। आई होप बेटा यू जस्ट इंजॉइंग दिस क्लास और आपने अच्छे से समझा हो। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स एंड इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू वॉच फुल वीडियो अगेन। Thanks a lot students. Bye bye. Take care. Stay safe and stay blessed also.